Hello friends, I Amit Trivedi, an SS professor who teaches you history, political science and geography. Hello students, please refer to part 1 to part 10 videos, then proceed with this part 11 video. Okay, till now what you have learned, just take a glance of it. Let's have a small revision kind of thing. Initially you have seen the introduction, yes, where you have seen the empirical method, then about the experimentation, how experiment plays an important role in history as well. Then you have understood the objectives of the writing history. In that objective you understood that in history everything should be in chronological order. Next, it has to be having an authenticity and very important, ascertaining the truth. Then we have understood about the need of an expert. Why expert is important, right? Expert होने से क्या फ़ायदा होता है, that you have understood. And then you have understood about the examination of references of the historical research method. Under the historical research method and the stages of historiography, you understood about the relevant historical information and comparative analysis. Compare करना बहुत ज़रूरी है. Second, you have understood about the understanding about the references of time and space. Then you have understood about the critical examination of various historical sources, and last is to formulate the hypothesis, assumptions. बिना assumptions के आप कभी भी history में आगे नहीं बढ़ सकते. You do assume something and then that assumed thing has been cross verified through different evidences or through different sources. Then we have understood 1.1 about the traditions of historiography. Under tradition of historiography, understood about that historical sources are critically examined and they are being preserved in writing. Then you understood about the narratives, historiography. It is the critical historical narratives, the meaning of historiography, and you have also understood about the scholars who have written such narrative is called as historian. And then we have seen about the Herodotus as well. He was the first historian in 5th century and he has written the book named The Histories, right? Okay. Then you understood about the historical writing work, about the narratives, about the thinkings of the people, and about the framework, different frameworks. And then you understood how the cave painting, storytelling, song ballads. We have also heard one song, right, related to ballad, one example of ballads in today's modern time. Definitely traditional ballads were very much related to emotional part. And then we have understood about the modern historiography, that is 1.2. Under modern historiography, you understood about the characteristics of the modern historiography. In this, you have understood about that how the formation of relevant questions are very important and which is asked in logical order, right? And then you have understood that the man is the center of it, anthropocentric, and all the things related to man and activities are being researched in the ancient society, and there is not an advocate or not been shown the interrelation between the divine, that is a god, and human actions. You have also understood in the modern historiography that the questions through the reliable and the answers to the reliable evidence is very important, and it is also arranged in logical order. And then all the things are related to the past deeds, and we have understood about the four zones of the, or four the sections of the people in the Hindu literature. That was an example. Basically, it's not related, it's not there in this chapter, but it's an example to make you understand that how Brahmacharya ashram or Grihastha ashram, Vanapastha ashram and Sannyas ashram has been there. So now we are moving ahead of this chapter to 1.3, that is development of scientific perspectives in Europe and historiography. So what we are going to do is that on page number 3 you can see this point 1.3, and we are going to assemble 1.3 this paragraph about notable scholars, development of the scientific perspectives in Europe and history, this part. Then we are going to add in this page number 5 analyst schools, and we are going to also add the feminist historiography as well. Yes, that is given on page 5. So this 3 part we are going to consider in development of the scientific perspective in Europe and historiography. So point number 1, we are going to make development of scientific perspective.
point number 2 analyst school, and point number 3 feminist historiography. Okay, so these three things can come differently also or can be clubbed together as well in the development of scientific perspectives in Europe and historiography. So starting with the first point, development of scientific perspectives, that you can see on page number 3, right? That first point, the Europe has achieved a remarkable progress till 18th century in the field of philosophy and science. Point number 2, scholars belonging to one school of thoughts presented the ideas of applying this knowledge of scientific method to study social and historical truth. So friends, I would like to ask you one very simple question. What do you mean by school? स्कूल क्या होता है, राइट? स्कूल क्या होता है, या मैं सिंपल कहता हूँ स्कॉलर्स कौन होते हैं? ऐसा करो, स्कूल का मीनिंग हम बाद में ढूंढेंगे, पहले स्कॉलर्स कौन होते हैं बताओ। स्कॉलर्स यानी अगेन यू विल से एक्सपर्ट्स, राइट? स्कॉलर्स यानी जो जिनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने स्टडी किया है, जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा उन्होंने थीसिस लिखा है, दोज आर कॉल्ड एज स्कॉलर्स। यस, सो मैं अभी पूछना चाहता हूँ व्हाट डू मीन बाय स्कूल? तो आप बोलेंगे स्कूल मतलब पाठशाला, स्कूल मतलब स्कूल, स्कूल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ने जाते हैं। तो अभी आप घर पे भी तो बैठे हो और घर पे बैठकर आप लोग अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में ये वीडियो सुन रहे हो, तो क्या ये स्कूल नहीं है? स्कूल का मीनिंग क्या होता है? सोचो सोचो, मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ। think what is school? Don't say school is a पाठशाला और school is a place जहाँ पे हम लोग जाके पढ़ते हैं, बेंचेस होते हैं, बोर्ड होता है। So right now there is no such amenities available, but still इसको भी हम स्कूल कह सकते हैं। So what is school? स्कूल का अर्थ क्या होता है? सोचो बच्चों, आपको सोचना पहले, डायरेक्टली मैं आंसर नहीं दूंगा, बिकॉज हर चीज़ का डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो इट इज़ लाइक ऑफ स्पून फीडिंग। सो आई वांट कि आप लोग भी कुछ सोचो। यस प्लीज, व्हाट डू मीन बाय स्कूल? ओके, सो द मीनिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बीइंग एजुकेटेड। जिस प्रोसेस से हम एजुकेट होते हैं, ओके, उससे हम स्कूल कहते हैं। ओके, या जिससे हमारा क्रिया, पढ़ने का क्रिया होता है, दैट इज स्कूल। सो नो डाउट, येस, इवन दैट मीनिंग इज राइट, दैट द प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू एजुकेट देमसेल्फ, दैट इज अ प्लेस, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, राइट? बट ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एजुकेट होते हैं। ओके, बेसिकली इसके बारे में मैं और समझाऊंगा आपके आगे एनएलएस स्कूल के टाइम पे। सो लेट्स प्रोसीड फॉर। सो एज वी हैव अंडरस्टूड दैट अ स्कॉलर बिलोंगिंग टू वन स्कूल, यानी कि एक एजुकेटेड सेक्शन से, एक नॉलेज के सेक्शन से, दे कंपेयर, दे अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3, आफ्टर दैट discussions were focused on objectivity in history and historiography। कभी भी है ना, कोई भी चीज़ में एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। यू जस्ट कैनॉट ब्लाइंडली बिलीव। यस, देयर इज ऑलवेज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द वैल्यू जजमेंट्स। ओके, जैसे कि एग्जांपल, हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यस, या अप्रूव कर देते हैं, या ऐसी कोई बातें जो हम सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस, यू कैनॉट बी सो वेरी जजमेंटल, you are reacting towards it. You have to maintain and allow the evidences to prove that. आपको सबूत के तौर पे बात करना है, एजम्पशंस के बेस पे बात नहीं करना है सिर्फ। ओके, तो 5 चीज़ें कभी भी याद रखो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या टू बिकम मोर ऑब्जेक्टिव एंड सी द ट्रूथ विद दिस टेक्निक। ये 5 चीज़ों को ऑलवेज अपने दिमाग में रखो। फर्स्ट,
ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिविटी को रिलेटेड, कि हमें अपने जीवन में हाउ टू बी मोर ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जर्वेशन या वैल्यू जजमेंट्स कैसे करना चाहिए। अवॉइड क्विक रिएक्शन, सीधा रिएक्ट मत करो, कभी भी नोटिस करो और उसके रिलेटेड आप बाद में आंसर निकालिए, डायरेक्टली आप रिएक्ट मत कीजिए। सेकंड, कंसीडर योर सेंसिटिव स्पॉट्स, आप देखो किस एंगल से आप सोचते हो, इमोशनल सोचते हो, प्रैक्टिकल सोचते हो, यस, या क्रिटिकली सोचते हो। नेक्स्ट, यू हैव टू ऑल्सो स्ट्रिप अवे योर पर्सपेक्टिव, आप अपने ही दृष्टिकोण से बात नहीं कर सकते कि मैं तो यही सोचता हूँ भाई, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। नो, आपको अलग अलग एंगल्स को लेकर सोचना है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू नो रिगार्डिंग द सिचुएशन, आप क्या सोच रहे हो वो आपको लिखना है, समझना है, पर यह भी देखना है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हो, दूसरे लोगों के इंटरप्रिटेशंस को भी आपको लेना पड़ेगा। फिर हो सकता है कि कभी कभी आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो बाकी के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हो, कभी कभी वीक हो, या कभी कभी सिमिलर। नेक्स्ट, वी कैन डीप पर्सनलाइज द सिचुएशन, अपनी सिचुएशन को डीप पर्सनलाइज कर लो। कोई भी सिचुएशन को आप अपने अंदर मत डाल दो कि यार ऐसा ही हो। जैसे एग्जांपल, कुछ लेडीज़, एग्जांपल है, जैसे कुछ लेडीज़ जो है वो सीरियल देखती है और सीरियल में अगर समझो सास बहू को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो उसको सीधा अपना याद आने लगता है, हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। या कोई वैम्प होती है सीरियल्स में तो वो अपना कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, हाँ मेरे लाइफ में भी ऐसी एक वैम्प है, राइट। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को किसी चीज़ के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे कोर्ट में जज होते हैं, वो जब देखते हैं कि कोई समझो डिवोर्स केस आया है और समझो उनका भी डिवोर्स हो गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मेल का ही साइड लेंगे, उनको दोनों साइड का सुनना पड़ेगा, दोनों साइड की सिचुएशन समझनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वो डायरेक्टली अपने लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं मेरी वाइफ ने मेरे साथ ये किया था इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया, तो इधर भी यही सिचुएशन है तो चलो इनको डिवोर्स हम अप्रूव कर देते हैं। नो नो, ऐसा नहीं होता है। दे गो ऑन विद द कंपैरेटिव थिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बीन अंडरस्टूड, समझा। रिस्पोंडेंट, पेटिशनर, दोनों साइड का सुनकर, दोनों का साइड का, तब जाके एक वैल्यूएबल जजमेंट्स बनाया जाता है। होपफुली आप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, हिस्ट्री गेन्ड इंपॉर्टेंस ओवर फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस एंड डिवाइन फिनोमिना। क्या लिखा है यहाँ पे? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस। फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स मतलब क्या? बहुत सारे विचार मंथन के बाद, यस, बहुत सारे विचार मंथन के बाद, बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारी चीज़ों से इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर कर एक साइंटिफिकली हिस्ट्री को डेवलप किया गया है। ऐसे ही आपकी बुक में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। इट हैज़ बीन विद अ वेरी वेरी इंटेंस रिसर्च, यस, एंड ऑल्सो विद द डिवाइन फिनोमिना, यानी कि नेचर को भी लिया गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, इन 1737 century the Göttingen University was founded in Germany which had an independent department of history। देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट कैसे आया, किसने बनाया और कैसे किया, वो हम लोग को सब्जेक्ट को हम देखेंगे। लेकिन जो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है, उन्होंने सबसे पहली बार एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया था हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और लेटर जर्मन ही थे वो पहले यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने हिस्टोरिकल स्टडीज़ को एज अ कोर्स, एज अ एजुकेशनल कोर्स शुरू किया था। अंडरस्टूड? तो ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं, इतना पवित्र सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, यस, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट वॉज मेड अ सब्जेक्ट इन 1737 इन जर्मनी। इसके पहले एक सब्जेक्ट नहीं था, ये सिर्फ एक डिस्कशन और आर्ग्यूमेंटिंग टॉपिक हुआ करता था, एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद द एनालिस्ट स्कूल। एनालिस्ट स्कूल क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।